اگر کوئی ہم سے لڑائی چاہتا ہے تو لڑائی چھیڑ لے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تمام جمہوری اور آئینی آپشنز موجود ہیں، ہم احتجاج کرنا بھی جانتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا سوشل میڈیا پیغام، کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قومی مفاد کو مقدم رکھا ہے، ہم اسلام آباد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ ملک کو درپیش مسائل کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ہم آج بھی صبر کر رہے ہیں لیکن ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر کی عوام کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو میں خود عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ان کے ساتھ بیٹھوں گا اور ان کے حق کے لیے احتجاج۔ الٹی گنتی والے خود بھی سیدھے ہو جائیں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا بلاول بھٹو کو جواب۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ نون لیگ کو آزاد کشمیر اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے لیے مزید 6 سیٹیں درکار ہیں۔ 10 اگست کو باغ کی چاروں نشستوں پر نون لیگ کے امیدواروں کی کامیابی کا بھی دعویٰ کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کشمیر سے پاکستان کا رشتہ کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ کشمیر پاکستان کی شرک ہے، اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ مسائل کے حل کے لیے ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ایکشن کمیٹی میں چند عناصر کو چھوڑ کر زیادہ تعداد محب وطن افراد کی ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت باغ میں آ کر دیکھے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں۔ سوال اٹھایا کہ جب آزاد کشمیر میں صدر اور وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے تو پھر دھاندلی کیسے ہوئی؟ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم کا آج آخری روز۔ ضلع باغ کے 3 حلقوں LA 14، LA 15 اور LA 16 میں پولنگ 10 اگست کو ہوگی۔ LA 17 حویلی میں بھی انتخابات ہوں گے۔ تیسرے مرحلے کے انتخابات میں آزاد کشمیر میں موجودہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور بھی میدان میں ہیں۔ 2 سابق وزراء اعظم سردار تنویر الیاس اور سردار عتیق بھی قسمت آزما رہے ہیں۔ پولنگ کے انتخابی سامان کی ترسیل کل ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ضلع پونچھ اور پلندری کی 7 نشستوں پر پولنگ کا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان معاہدہ تینوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ معاہدہ خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کو یقینی بنائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کی بدولت یہ مشترکہ ویژن حقیقت کے روپ میں بدلا ہے۔ اپنے عزیز ترین بھائیوں کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنا میرے لیے اعزاز ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، امن کے حامی دیگر ممالک بھی اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ معاہدے کی دستاویز صرف حق دفاع کا عزم دہراتی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین مکہ دفاعی معاہدہ خوشائن بات ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کا معاہدے کا خیر مقدم، سیکرٹری جنرل کا اہم اسٹریٹجک اقدام کی مکمل حمایت کا اظہار۔ OIC کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں کہ معاہدہ خطے اور پوری مسلم دنیا میں سلامتی اور استحکام کی حمایت کے لیے ایک بنیادی ستون تشکیل کرتا ہے۔ یہ معاہدہ بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ بحرین بھی 3 برادر ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ بحرین کی وزارت خارجہ کے مطابق معاہدہ خلیج تعاون کونسل کے اجتماعی دفاعی نظام کو مزید مؤثر بنائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ شہباز شریف نے اپنے دورے کے دوران عمرہ کی سعادت بھی حاصل کی اور مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ آصف عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی سید طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو ملکی تاریخ کا اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ایک تاریخی پیش رفت ہے، اس سے ہماری دفاعی صلاحیتیں مزید مضبوط ہوں گی۔ معاہدہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے مستحکم اور محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ تینوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری، باہمی یکجہتی اور اجتماعی سلامتی کے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر سے ثابت کیا ہے کہ پاکستان اعتماد، سفارتکاری اور امن و سلامتی کے واضح ویژن کے ساتھ قیادت کر سکتا ہے۔ کراچی کے نوجوان بزنس مین میر رضا کی قبر کشائی اور سیمپلنگ کا عمل مکمل کر کے لاش کو دوبارہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پولیس سرجن سمیہ سید کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ کی زیر نگرانی قبر کشائی کی گئی۔ پولیس کے مطابق شواہد جمع کرنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔
बॉडी से हासिल किए गए सैंपल्स फॉरेंसिक लैब में भेजे जाएंगे। वालिदैन का DNA भी होगा। शवाहिद की जांच के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। उधर मीर रजा की मौत से चंद घंटे कबल किए गए मुबैना ऑडियो पैगामात सामने आ गए। मकतूल मीर रजा ने ऑडियो पैगामात में रकम वसूली और लाखों के चेक्स की तजावीज़ भी दी। ऑडियो पैगाम में मीर रजा ने मुखातिब शख्स से मसाइल खुलकर बयान करने का कहा। ऑडियो मैसेज के बाद तहकीकात का दायरा मजीद वसी होने का इम्कान है। आबने हुर्मुज़ के मुआहदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतज़ार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान बहरी रास्ते पर मुआहदा करने के करीब पहुँच गए हैं। मुआहदा होते ही अमरीका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा ख़त्म कर देगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदा हो गया तो ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। अमरीकी इक़दामात ईरान के मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत होंगे। ओमान के साथ आबने हुर्मुज़ में नए रास्ते के तयन पर मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि तेहरान और मस्कत इस वक्त आबने हुर्मुज़ में आरज़ी बहरी रास्ते के क़याम पर बातचीत कर रहे हैं। आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने की शराइत में अमरीकी खिलाफ वर्जियों पर ईरान को मुआवजे की अदायगी भी शामिल है। उधर पासदारान इनक़लाब के तर्जुमान हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि आबने हुर्मुज़ उस वक्त खुलेगी जब अमरीका ईरान की तमाम शराइत तस्लीम करेगा। पासदारान इनक़लाब के तर्जुमान का कहना है कि आबने हुर्मुज़ के खुलने का ओमान के साथ होने वाले मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे लिए आबने हुर्मुज़ महज एक तिजारती आबी गुज़रगाह नहीं बल्कि ताक़त और क़ुव्वत का ज़रिया है। दुश्मन इस बहरी रास्ते को खुलवाने के लिए ईरान की शराइत तस्लीम करने पर मजबूर है। ईरान में बड़े फौजी ऑपरेशन से नुकसान का अंदेशा। अमरीकी फौज के सरबराह ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमरीकी टीवी का ज़राए के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल डैन कैन ने कहा कि वो ईरान जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं क्योंकि जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है और सिर्फ फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर यह जंग नहीं जीती जा सकती। इससे कबल जंग बढ़ाने के खिलाफ CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस भी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। मुसल्लह अफ़वाज पूरी तरह तैयार है, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर का कहना है जंग के बजाय मुज़ाकरात से हुकूक हासिल करना चाहते हैं। हथियार डालने पर मजबूर करने का ख्वाहिशमंद इसराइल जंग जारी रखना चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी क़ुव्वत के साथ मुकाबले में अपनी तैयारी और सलाहियत का मुज़ाहरा किया। इलाक़ाई सिक्योरिटी का निज़ाम गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर होना चाहिए। खित्ते की सिक्योरिटी का इंतज़ाम सिर्फ इलाक़ाई ममालिक को ही मिलकर संभालना चाहिए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी कहते हैं ख़लीजी ममालिक के साथ सिक्योरिटी मामलात पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए हालात साज़गार हैं। तवील फ़ौजी कार्रवाइयाँ और कशीदगी खित्ते के ममालिक की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं। वेनेज़ुएला की तरह ईरान से तेल लेने के ट्रंप के बयान पर भी ईरान की शदीद तनकीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि माल गनीमत का दावा करने से पहले जंग जीतना ज़रूरी है। बंद गली में फंस कर हथियार ख़त्म करना कामयाबी नहीं है। ईरान में मुबैना अमरीकी कामयाबी महज कागज़ी ट्रॉफी की तरह है। ईरान ने जंग के दौरान तबाह किए गए अमरीकी और इसराइली एयरक्राफ्ट को नुमाइश के लिए पेश कर दिया। नुमाइश में इसराइली ड्रोन हमेस 900 नुमाया है, जिसको ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए तकरीबन महफूज हालत में कब्जे में लिया। MQ-9 अमरीकी लड़ाका तैयार F-15 और C-130 की बाक़ियात भी नुमाइश का हिस्सा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी माहिरीन ने ज़ेर कब्जा सेंसर्स, मवासलाती निज़ाम और कॉकपिट पार्ट्स का रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए मुताला शुरू कर दिया। यमन की फौज का हौसियों की तंजीम अंसारुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। तर्जुमान यमनी फौज के मुताबिक मारब और हजरल मौत में हौसियों के हमलों के जवाब में ऑपरेशन किया जा रहा है। अपने शहरियों और फोर्सेस के खिलाफ किसी भी खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ हौसियों ने मारब के कैंप पर हमला किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने यमन में दोबारा बड़े पैमाने पर जंग का खदशा जाहिर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची का कहना है कि 2022 में जंगबंदी के बाद दोबारा से हालात कशीदा हैं।
फरीक़ैन कार्रवाइयों के अहकामात ईरान से नहीं आ रहे। सऊदी अरब के खिलाफ इक़दामात करने के लिए हमें ईरान से अहकामात लेने की ज़रूरत नहीं। हमारी फ़ौजी कार्रवाइयाँ रुकवाने के लिए सऊदी अरब की जानिब से हमारी नाकाबंदी ख़त्म होना ज़रूरी है। हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी। कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरियर एसोसिएशन समेत दीगर तंजीमों की जानिब से भी हिमायत का ऐलान। सेक्रेटरी KGCA नदीम अख्तर कहते हैं कि हड़ताल की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का नुकसान होगा, जिसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। बंदरगाहों समेत दीगर मकामात से मज़ीद कोई लोडिंग नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास शोहदा और शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले गाज़ियों को सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी दी गई। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क व कौम की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों और गैर मामूली शुजाअत का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई कौमी जिम्मेदारी है। शोहदा और गाज़ियों की अजीम कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश, बाज़ इलाकों में 75 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई। गुजरांवाला में एक बार फिर से बादल बरस पड़े। पसरूर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरसने की तवक्को है। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश होने का इम्कान है। NDMA ने पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी और शहरी मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब को सूबे भर में मज़ीद बेहतरी का हदफ दिया। सुबह 5 बजे मरकजी सड़कों की धुलाई और सफाई का हुक्म। कमर्शियल एरिया से वेस्ट हटाने के लिए औकाती कार मुकर्रर करने के तहत मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब कंपनियों से वर्कर्स को अदायगी की माहाना रिपोर्ट तलब कर ली और वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी का हुक्म दिया। वज़ीर आला का कहना है, सुथरा पंजाब में वर्कर से अफसर तक हर सतह पर कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएं। सुथरा पंजाब में काम ना करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए।